morning, my dear students. In the previous session, I have explained the chapter that is from the railway carriage. This is the poem. This was the poem, and I have explained this poem to you in the previous session. In this session, today I am going to explain or discuss the question answers of this chapter to you all. So, before starting the discussion of the question answers, I want to explain this chapter again to you in short so that आपको ये chapter अच्छे से समझ में आ जाए. So let's get started. So before starting the chapter, so before starting the explanation of this chapter, I want you all to tell the poet of this poem. So the poet of this poem is Robert Louis Stevenson. इस poem के जो poet है उनका नाम है Robert Louis Stevenson. So now this poem, in this poem, the poet has beautifully described the scene, the sight while traveling from the train. क्या है? The poet describes the beautiful sight which can be seen from the window of a moving train. In this poem, the poet is sitting. The poet is traveling from the train, and he has described beautifully the scene, the sight जो भी वो देख रहा है. पोएट जो है विंडो सीट पर बैठा हुआ है ट्रेन की, और उसे जो भी सीन वहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मूविंग ट्रेन में विंडो पे जो भी सीन वो देख रहा है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली पोएट ने डिस्क्राइब किया हुआ है. पोएट हैज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग ऑफ जॉय व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम द ट्रेन. पोएट जो है अपनी खुशी को भी जाहिर किया है इस ट्रेन से, जो ट्रेन के दौरान उसका सफ़र है. फास्टली मूविंग ट्रेन है, ट्रेन जो है बहुत ही फास्टली मूव कर रही है, और जो भी उसे दिख रहा है, जो भी उसे खुशी मिली है, उसको भी इस पोएम में उसने डिस्क्राइब किया. नाउ as the train moves at a fast speed, it appears to the onlookers as if everything is moving along with the train. तो पोएट ये कह रहे हैं, इसमें उन्होंने बताया है कि जैसे जैसे ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, as I have already told you कि ट्रेन जो है फास्ट है, ठीक है, ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्टली. सो जैसे जैसे ट्रेन मूव कर रही है, पोएट को ये फील हो रहा है कि जो भी चीज़ें हैं या जो भी देखने वाले हैं वहाँ पे ऑनलुकर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं वो ट्रेन के साथ साथ मूव कर रही हैं, ठीक है. द पोएट हैज़ ब्यूटिफुली डिपिक्टेड द सीन which a person usually sees while sitting inside the train and enjoys the thrill of observing everything from the fast moving train. इस पोएम में पोएट ने बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही ब्यूटीफुली ही हैज डिपिक्टेड द सीन, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदरता से पोएट ने इस पोएम में चीज़ों को लिखा है, हर चीज़ों को बताया है कि जब भी कोई मूविंग ट्रेन है, कोई फास्टली मूविंग ट्रेन है, या कोई भी है, आप लोग भी हैं, जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो आपको खुशी मिलती है, जो आपको जॉय मिलता है ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त, क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं, उस चीज़ों को इस पोएट ने इस पोएम में बताया हुआ है. ठीक, नाउ लेट्स get into the discussion of the question answers. So answers of the following questions. Question number 1 का first answer है, while looking out of the window of a railway carriage, the poet noticed a child who was clambering and scrambling, a tramp who was standing and gazing, daisies, a cart that was running away on the road, and he also noticed a hill and a river. So I will repeat this answer again. While looking out of the window of a railway carriage, the poet noticed a child who was clambering and scrambling, a tramp who was standing and gazing, daisies, a cart that was running away on the road, and he also noticed a hill and a river. Okay, now the second answer is, the train is referred to as charging along like troop in a battle. I will repeat this answer again. The train is referred to as charging along like troop in a battle. So students, I will explain this answer number 1 in Hindi. मतलब इस आंसर में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ट्रेन में जब वो पोएट जो ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में,
उन्होंने क्या क्या देखा? सो ही हैज सीन व्हाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन रेलवे कैरेज, जो वो रेलवे कैरेज मतलब जो ट्रेन की विंडो से जब वो बाहर देख रहे हैं तो उन्हें क्या क्या दिख रहा है? द पोएट नोटिस द चाइल्ड हु वाज क्लैम्बरिंग एंड स्क्रैम्बलिंग। पोएट जो है नोटिस करते हैं बच्चों को जो कि खेल कूद रहे हैं बहुत ही ऑकवर्ड वे में उछल कूद मचा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ ट्रैम्प हु वाज स्टैंडिंग एंड गेजिंग। ट्रैम्प मतलब जो भीख मांगने वालों का झुंड होता है, समूह होता है, भीख मांगने वाले जो हैं वो खड़े हैं और गेजिंग कर रहे हैं। गेजिंग मतलब वो लोगों को घूर रहे हैं, ठीक है। डेजीज मीन्स व्हाइट फ्लावर्स। अ कार्ट दैट वाज रनिंग अवे ऑन द रोड, वो वहां पर कार्ट भी देखते हैं। कार्ट मीन्स गाड़ी देखते हैं जो कि रोड पे चल रही है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो नोटिस्ड अ हिल एंड अ रिवर, और पोएट को हिल्स और रिवर्स भी दिखते हैं। Now the explanation of the second answer is the train is referred to as charging along like troops in a battle। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस चीज को रेफर किया गया, किस चीज को बोला गया है कि दैट इज चार्जिंग along like troops in a battle। किसको कंपेयर किया गया? किससे? सैनिकों से। जो सैनिकों का समूह है जो कि बैटल फील्ड में युद्ध भूमि में लड़ने जा रहा है, किसको कंपेयर किया गया? तो किसको किया गया? रेफर किया गया? ट्रेन को रेफर किया गया है। सो द थर्ड आंसर इज द पोएट सेज सो बिकॉज द ट्रेन मूव्स एट अ ग्रेट स्पीड। आई विल रिपीट दिस आंसर अगेन। द पोएट सेज सो बिकॉज द ट्रेन मूव्स एट अ ग्रेट स्पीड। आई विल एक्सप्लेन दिस आंसर। इस आंसर का मतलब क्या है कि पोएट ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ट्रेन है, द ट्रेन मूव्स एट अ ग्रेट स्पीड, क्योंकि ट्रेन जो है बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, ठीक है, बहुत ही तेजी से मूव कर रही है। नाउ द फोर्थ आंसर, द पोएट डिस्क्राइब द चाइल्ड एज द वन हु क्लैम्बर एंड scrambles and all by himself। I will repeat this answer। The poet described the child as the one who clamber and scrambles all by himself। इस आंसर में पोएट ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड है, बच्चों को इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो क्रैम्बलिंग और स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं। क्या मतलब? वो ऑकवर्ड वे में मूव कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ऑकवर्ड वे में उछल कूद मचा रहे हैं। इस तरह से पोएट जो है बच्चों को डिस्क्राइब किया है। नाउ द फिफ्थ आंसर, द पोएट सेज दैट द ट्रैम्प इज स्टैंडिंग एंड गेजिंग। द पोएट सेज दैट द ट्रैम्प इज स्टैंडिंग एंड गेजिंग। पोएट ये कहते हैं कि जो ट्रैम्प है, ट्रैम्प मीन्स जो भीख मांगने वाले हैं, वो वहां पर स्टेशन पर खड़े हुए हैं और वहां के लोगों को घूर रहे हैं। आंसर नंबर 6, कार्ट इज referred to as lumping along। The poet uses the term lumping because the cart is carrying the man and load with difficulties। क्या है? Cart is referred to as lumping along। The poet uses the term lumping because the cart is carrying the man and load with difficulty। इसका मतलब क्या है? कार्ट मीन्स गाड़ी को लंपिंग along से रेफर किया गया है। क्यों किया गया है? The poet uses the term lumping। पोएट ने लंपिंग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि जो कार्ट है, जो गाड़ी है, वो उसके ऊपर मैन और उसके साथ साथ लोड मतलब वजन भी है, और उसके साथ साथ वो आदमी का भी लोड उठाया हुआ है। मैन का वजन और लोड भी उठाया हुआ है, बहुत ही डिफिकल्टी से वो मूव कर रहा है, इसलिए लंपिंग वर्ड रेफर किया गया है कार्ड को। नाउ द लास्ट आंसर दैट इज 7 इज हियर द पोएट मीन्स टू से दैट द ट्रेन इज मूविंग टू फास्ट which gives the impression as if the landscape seems to fly away within a short span of time। क्या है? Here the poet means to say that the train is moving too fast which gives the impression as if the landscape seems to fly away within a short span of time। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पोएट का मतलब क्या कह रहे हैं? पोएट मीन्स टू से दैट द ट्रेन इज मूविंग टू फास्ट।
पोएट का कहने का मतलब है कि ट्रेन जो है बहुत तेजी से चल रही है, विच गिव्स द इम्प्रेशन, जो किस चीज का इम्प्रेशन मतलब झलक दे रही है, एज इफ द लैंडस्केप सीम्स टू फ्लाई अवे। लैंडस्केप जो है हमारे अगल बगल की जो सराउंडिंग है वो ऐसी लग रही है जैसे वो उड़ रही हो। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मीन्स कि कुछ ही पलों में पलक झपकते ही कोई भी चीज आ रही है और फिर वो पीछे छूट जा रही है फास्ट मूविंग ट्रेन के साथ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज ओवर। ओके